Uh, Hi everybody. Uh, Let me wait for some people to join. I'll start in like 2 minutes. Hi Sumedha. Hi Jalpa. Hi Aiza. Hi everybody. I think it's already time. What is the time? 7. I think we should start. Uh, okay, let's wait for 2 more minutes. Hi Kunjal. Hi Pranab. Hi Keval. Thank you for joining in. Hi Abha. Hi Krati. Keval. I'm good. How are you guys? So I would actually like to start by thanking Amul for giving me this opportunity to cook my favorite dish with you guys. I'm very excited. I'm also quite nervous, so please be with me. And if you have any questions, please ask. I would try to answer all of them. So let me start by introducing myself. I am Juhi Goyal and I'm a UX designer. I work in Bangalore, but right now I'm in Delhi with my family. This is my mom's kitchen and I don't cook a lot here for obvious reasons, but today I'm going to cook here. And so I have a blog, Instagram blog called Tiny Chef. Please go and follow me. It's called That Tiny Chef, TINYCHEF. I also have a YouTube channel called Tiny Chef, youtube.com/Tiny Chef. Please go and subscribe to that channel. So till last 4 years, so I did not know how to cook. I was a complete noob 4 years ago, and so right now what I really try to do is make recipes which are for lazy people like me, which are very easy to make and you don't require a lot of ingredients, especially in this lockdown. And today I'm going to share one of those recipes with you. It is my favorite recipe. Whoever comes to my house, this is the recipe that I make everybody eat because it's the safest to make. And it's my brother's favorite as well. It's called creamy garlic mushroom. And people who don't like mushroom, I'm telling you, you have to try this recipe. Take my word for this. Just try once this in your life. And if you don't like it, never try mushroom again. But you have to try this one for my sake. And you can thank me later for this. So let me start by showing you all the ingredients that we would need. And yes, let's go ahead. So let me show you all the milk products and you can see my Instagram handle and my YouTube handle also. Please go and subscribe and follow me. Okay, so let me show you the ingredients. So first we need 200 grams of mushroom and we need 1 tablespoon of butter. We would also Amul butter. We would also need some butter to toast the bread as well. This is multigrain bread. I usually like to have multigrain bread. So this is minced garlic. Minced garlic is chopped garlic, and you can have like 1 or 2 tablespoons of minced garlic. So this is salt. This is 1 tablespoon of maida. I'll also tell you the substitute of maida. This is 2-3 grams of pepper. This is 1 cup of milk, and this is olive oil. This is chili flakes, and this is oregano. I'm also going to make a herbed rice today, which I did not tell in my poster. So it tastes amazing with mushroom. So I have rice and I have some herbs. I have pudina and coriander, which we'll use to make the herbed rice. Okay, so so a lot of you actually, so when the first time I made mushrooms, I did not know how to cut mushrooms. So I actually Googled it.
So I thought maybe I should share that with you guys as well, how to wash mushroom and cut mushroom, because a lot of people actually don't know. So let me just wash it. So mushroom has a lot of dirt, so you need to wash it really thoroughly. Let's cut it now. You don't need to take out the stem. I don't. You can just slice it without taking out the stem. I think my hands are shaking because I'm kind of nervous. Let's just ignore that. I think chopping is very therapeutic. I love chopping. You can cut them into smaller pieces, it's up to you. But trust me, this is going to shrink into like half of the size. So you don't need to worry about the size as such. Please don't worry about the sizes and the symmetry or anything, just like cut the way you like it. So these are 200 grams of mushroom. It's actually one packet that you get in the market. So one packet is enough. Okay, let's start. I'll take this kadai. Let this get warmed up a little. So you need to add 1 tablespoon of butter. Please sim the gas because the butter gets burned, and that's why we'll add olive oil so that it doesn't get burned. Just 1 tablespoon of I know you need a lot of patience for cooking, but this is actually very easy to make. So don't worry at all. Even if you're not a pro at cooking, this is very, very easy to make. This is actually for people who don't know how to cook. Trust me. So let me add 1 tablespoon of minced garlic. Please make sure this doesn't get burned. Let it just become light shade of brown. Hi everybody, whoever has just joined in. Hi, I'm Juhi.
and I'm cooking creamy garlic mushroom for you guys. It's my favorite recipe and it's the safest recipe to cook, trust me. I'm just waiting for garlic to turn a little brown, light brown. But please make sure it doesn't get burned, because that can easily happen with people like me who don't have any patience in life. So let's add 1 spoon of maida. Please make sure there are no lumps. Just keep stirring it. So if you don't want to have maida, I know it's not good for health and a lot of people avoid it. So you can also have oats flour. You just need to take rolled oats and grind it into a powder and just use it in place of maida. That will also work. It won't really compromise on the taste. तो जस्ट मेक श्योर कि इसमें लम्स ना पड़े और इसको घुमाते रहना जिससे ये फाइन पेस्ट टाइप बन जाए. और अब इसके अंदर हम मिल्क डालेंगे, अमूल मिल्क ऑब्वियसली. अगर आपको और ग्रेवी चाहिए तो आप और मिल्क डाल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी बन जाएगा. अगर आपको राइस के साथ खाना है तो इसमें और मिल्क डाल देना. तो ये सेम रेसिपी है जिससे हम पास्ता बनाते हैं. ये वाइट सॉस रेसिपी है. इसमें आप अगर डायरेक्टली पास्ता डालोगे तो पास्ता बन जाएगा. तो ये काफ़ी हैंडी आती है, इससे काफ़ी सारी डिशेस बन जाती है. कीप स्टेरिंग इट. तो ये थोड़ा थिक हो जाएगा पेस्ट. थोड़ा थिक हो रहा है ये. So Juhi, someone is asking if this is white sauce or gravy. This is white sauce. This is the same sauce that you use in your white sauce pasta. तो आप इससे कुछ भी बना सकते हैं. आप इससे पास्ता भी बना सकते हैं और जो मैं बना रही हूँ वो भी बना सकते हैं. तो ये काफ़ी हैंडी आती है. यही रेसिपी होती है वाइट सॉस की जो हर जगह यूज़ होती है. एंड बहुत ईजी है इसको बनाना, एज यू ऑलरेडी सीन. तो ये थिक हो रही है. तो इसमें अब हम सॉल्ट डालेंगे और पेपर डालेंगे. तो इन चीज़ों का बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि सॉल्ट थोड़ा सोच समझ कर डालें, क्योंकि बटर में भी सॉल्ट है. अभी मैं चीज़ डालूंगी उसमें भी सॉल्ट होगा. तो बहुत चांसेस होते हैं कि सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है. तो थोड़ा कम सॉल्ट डालो और बाद में टेस्ट करके और डाल देना, बिकॉज काफ़ी चांसेस होते हैं कि सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है. क्योंकि मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है. I've learned it the hard way and I don't want you to actually go through the same thing. तो अभी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ बस, हाफ टेबल स्पून, and I think it should be enough. जो लोग अभी आए हैं, मैं दोबारा से बता रही हूँ कि मैं बना रही हूँ क्रीमी गार्लिक मशरूम और ये मेरी फेवरेट रेसिपी है. और प्लीज़ इसको ज़रूर बनाइएगा. टेक माई वर्ड फॉर दिस एंड थैंक मी लेटर.
अब मैंने हाफ टेबल स्पून पेपर डाला है, ज़्यादा पेपर मत डालेगा, हाफ आई थिंक शुड बी इनफ। अगर टेस्ट करने के बाद लगे कि आपको और ज़्यादा चाहिए, आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, तो प्लीज़ गो अहेड एंड ऐड सम मोर। इसी ये ग्रेवी अब थिक बन गई है। दिस इज अ थिक ग्रेवी। यस, इट लुक्स गुड। आई विश यू गाइज कुड स्मेल दिस, इट स्मेल्स रियली गुड। मेरा पूरा किचन में से वाइट सॉस का स्मेल हो गया। जो लोग अभी आए हैं, मैं दोबारा से बता देती हूँ कि अभी मैंने क्या क्या किया। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो अभी मैंने बटर डाला और ऑलिव ऑयल डाला, जिससे बटर जले नहीं। उनको डाला कढ़ाई में। उसके बाद में थोड़ा सा 1 टेबल स्पून गार्लिक डाला, फाइनली चॉप्ड गार्लिक। उसको थोड़ा ब्राउन होने दिया। उसके बाद मैंने उसके अंदर 1 टेबल स्पून मैदा डाला, उसको मिक्स किया जिससे बटर के साथ, जिससे उसमें लम्स ना पड़े। सो मेक श्योर इसमें लम्स नहीं हो। और उसके बाद फिर मैंने उसमें 1 कप मिल्क डाला और सॉल्ट एंड पेपर आपने देखा कि मैंने भी डाला। तो उसके बाद ये वाइट सॉस आपकी रेडी है। अब आप इसमें पास्ता डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पेपर डाल दिया है, बट आई थिंक इट शुड बी ओके। प्लीज़ दोबारा से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल देख लीजिए और प्लीज़ जस्ट गो एंड फॉलो मी and subscribe on YouTube as well. Let me add mushroom now, क्योंकि मशरूम को भी कुक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके साथ ग्रेवी और थिक हो जाएगी। ये मत सोचना कि बहुत सारे मशरूम हैं, बिकॉज ये अभी हाफ हो जाएंगे और ज़्यादा बचेंगे नहीं। आई थिंक नॉट मोर देन 2 people कैन हैव दिस। सेम रेसिपी में यू कैन ऐड थोड़ा सा और मशरूम, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। अगर ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो स्टार्टिंग में मिल्क ज़्यादा डाल सकते हैं। ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा थिक हो गई है। I think it should be fine. So Juhi, someone is asking if you can use anything else apart from mushrooms. Yes, you can put any vegetables in this. मैंने इसमें ब्रोकली भी ट्राई किया है, मैंने इसे बेक कर दिया था चीज़ डाल के। तो आप ब्रोकली भी डाल सकते हैं और कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं एक्चुअली। Can we like put paneer or cauliflower etc. कॉलीफ्लावर यस, पनीर और वाइट सॉस मैंने खुद कभी ट्राई नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में वो कैसा लगेगा। आई डोंट थिंक कि पनीर से साथ जाएगा, बट वेजिटेबल्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं और फिर से बेक कर दें तो वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसके ऊपर थोड़ा चीज़ डाल के। तो काफ़ी मैंने ब्रोकली बनाया था, बेक ब्रोकली विद सेम रेसिपी, एंड इट वाज अमेजिंग। तो अभी ये कुक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये श्रिंक हो जाएंगे बिल्कुल। सो थोड़ा वेट करते हैं, लेट इट कुक। थोड़ा थोड़ा बीच में इसको हिला देंगे। उसके साथ साथ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक हर्ब्ड राइस। आई विल शो यू हाउ टू मेक हर्ब्ड राइस। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। So Juhi, a lady is asking if you have boiled mushroom or not. No, you don't need to boil mushroom. The mushrooms will get cooked with the gravy, with the white sauce. तो आपको इसको बॉईल करने की जरूरत नहीं है, ये ग्रेवी के साथ कुक होगा तो इसके अंदर ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इसको कुक होने दीजिए। आप इसे बॉइल्ड भी डाल सकते हैं, बट आई वोंट रियली रेकमेंड इट, क्योंकि वो फ्लेवर चला जाता है। अभी ग्रेवी के साथ होगा तो उसमें ज़्यादा फ्लेवर आएगा। तो लेट इट गेट कुक, थोड़ा टाइम लगेगा। आई थिंक जस्ट गिव इट लाइक 5-7 मिनट्स, कुक हो जाएगा। इतनी में हम हर्ब्ड राइस बनाते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लो। वील कम बैक टू दिस आफ्टर, जब हम मतलब राइस चढ़ा देंगे। इसको लो फ्लेम पे ही रखिए, नहीं तो ये जल सकता है,
क्योंकि अभी हम और काम करने लगे हैं तो इसको मैं लो फ्लेम पे रखती हूँ। तो इसको बनने दीजिए, इट विल टेक टाइम, उसको अपना थोड़ा टाइम लेकर कुक होने दीजिए, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स मेक हर्ब्ड राइस। सो विल टेक वन बिग पतीला एंड इसमें मैं 1 कटोरी चावल डाल रही हूँ। इसमें मैं अब 2-3 कटोरी पानी डालूंगी कुक करने के लिए। आई एम वेरी क्लमजी, सो प्लीज बेयर विद मी। I put 4 कटोरीज एंड अब इसमें लेट मी चॉप दीज फॉर यू। मैं थोड़ा इसको चॉप कर लेती हूँ। ये हम राइस में डालेंगे। हर्ब्ड राइस ये बहुत अच्छे लगते हैं मशरूम के साथ। सो मेनी पीपल हु फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम हैव ट्राइड दिस रेसिपी। आई थिंक डेली मुझे एटलीस्ट 5 मैसेजेस आते हैं जिसमें लोग ट्राई करते हैं। दे लव दिस रेसिपी, सो यू हैव टू ट्राई इट। अब मैं गैस जला रही हूँ। इसमें मैं ये हर्ब्स डाल रही हूँ और मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ एंड आई विल मिक्स इट अप अ लिटिल एंड मैं इसको चावल को बनने दूंगी। What are these greens? These are coriander and mint, धनिया और पुदीना। Yes, I forgot the name. Sorry. So it's धनिया and पुदीना, coriander and mint leaves. तो थोड़ा सा एक बाउल में जितना इतना कुछ प्रोपोर्शन इतना ज़रूरी नहीं, बट जस्ट 1 बाउल में दोनों मिक्स करके आप इसमें डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये कुक होने के लिए मैंने रख दिया है और इसमें हम इसको अपने मशरूम को भी सर्व कर लेते हैं, जिससे ये नीचे ये कुक हो रहे हैं। यू कैन सी कि श्रिंक हो रहा है। ये राइस मैंने अब ढक दिया है इसको बनने के लिए। अभी मैंने इसको तेज़ पे गैस तेज़ है, थोड़ा बॉईल हो जाएगा वाटर तो उसके बाद मैं इसको कम कर दूँगी एंड उसको बनने देते हैं। ये मशरूम कुक हो रहा है, आप देख सकते हैं कि श्रिंक हो रहा है क्योंकि ग्रेवी पार्ट बढ़ रहा है, तो इसको थोड़ा टाइम और लगेगा, अभी बिल्कुल छोटे हो जाएंगे। सो लेट इट ऑल कुक। So people who just joined in, let me do a quick recap for you guys. तो हमने पहले मैं बना रही हूँ आज क्रीमी गार्लिक मशरूम और हर्ब्ड राइस। तो क्रीमी गार्लिक मशरूम के लिए मैंने पहले एक कढ़ाई में बटर लिया और ऑलिव ऑयल लिया और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच मिन्स्ड गार्लिक डाला। मिन्स्ड गार्लिक इज फाइनली चॉप्ड गार्लिक। उसको थोड़ा ब्राउन होने दिया, फिर उसमें मैदा डाला 1 चम्मच, फिर उसको थोड़ा सर्व किया जिससे वो पेस्ट बन जाए, बिल्कुल फाइन पेस्ट। जस्ट मेक श्योर कि इसमें कोई लम्प्स नहीं हो। फिर मैंने उसमें एक कप दूध डाला, विच इज अराउंड लाइक 200-250 ml ऑफ मिल्क, अमूल मिल्क। फिर मैंने उसे स्टर करती गई और जब तक तो उसको थिक होने दीजिए, उसको थोड़ा स्टर करते रहिए तो वाइट सॉस बन जाएगा। वो वही सेम वाइट सॉस है जो आप पास्ता में यूज़ करते हैं, वाइट सॉस पास्ता। तो अगर आप उस वाइट सॉस में पास्ता भी डाल देंगे तो वो पास्ता बन जाएगा। एंड पर मैं आज बना रही हूँ क्रीमी गार्लिक मशरूम, विच इज़ माई फेवरेट मोर देन पास्ता। आई लव दिस रेसिपी। तो अभी मैंने वो सॉस बनाने के बाद उसमें मशरूम डाल दिए, स्लाइस मशरूम्स, और ये अभी बन रहे हैं। ये थोड़े मशरूम कुक हो रहे हैं, हम इसे ग्रेवी में कुक होने देंगे जिससे ये श्रिंक हो जाए, अच्छे से फ्लेवर ले ले उस सॉस का। तो यू कैन सी कि कुक हो रहे हैं।
तो दिस डिश इज़ एक्चुअली वेरी वर्सटाइल. आप इस डिश को अगर इसी मशरूम के साथ ही आप बॉईल करके पास्ता डाल देंगे तो मशरूम वाइट सॉस पास्ता बन जाएगा. या फिर आप इसको राइस के साथ खा सकते हैं. राइस के साथ जो मैं राइस बना रही हूँ हर्ब्ड राइस, उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये. थोड़ा ग्रेवी उसके लिए ज़्यादा बना सकते हैं अगर आप चाहो तो. थोड़ा मिल्क 1 कप की जगह थोड़ा सा और डाल देंगे तो थोड़ी ग्रेवी बढ़ जाएगी और फिर राइस के साथ खाने में थोड़ा ईजी हो जाएगा. या आप इसको टोस्ट के साथ खा सकते हैं, जो अभी मैं टोस्ट करूँगी ब्रेड. तो हाँ, तो आप उसके साथ भी खा सकते हैं. या आप इसको सैंडविच बना के खा सकते हैं. 3 चीज़ें हो गई, पास्ता या टोस्ट ब्रेड के साथ या राइस के साथ. तो इस डिश को काफ़ी तरीके से खाया जा सकता है. तो अभी इसको थोड़ा कुक होने देते हैं. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी इसको थोड़ा कुक होने में थोड़ा टाइम और है. हाँ, इसमें क्रीम भी डालनी है. I forgot to put the cream. इसमें 2-3 टेबलस्पून अमूल फ्रेश क्रीम. आप इसको स्किप कर सकते हैं चाहे तो, अगर ज़्यादा क्रीमी नहीं चाहिए यू कैन स्किप इट. आई एम ऑल्सो एडिंग चीज़. दिस इज़ अमूल चीज़. आपको ये भी स्किप करना है तो आप कर सकते हैं. और चाहे आपको मैं मोस्टली हाफ कप चीज़ डालती हूँ, बट अगर आपको और चाहिए तो आप कितना भी चीज़ डाल सकते हैं. चीज़ का कोई लिमिट नहीं है. Chui, what masalas did you add in your gravy? अभी मैंने सिर्फ इसमें सॉल्ट और पेपर डाला है. अभी मैं इसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो भी डालूंगी. तो ये बस बनने वाला है, थोड़ा सा ही रह गया है. चीज़ मैंने प्रोसेस चीज़ यूज़ करी है अमूल की. यू कैन सी दिस चीज़ एक्चुअली, दिस वन. Vandana, can you ask your question again? सॉरी, एक्चुअली काफ़ी लोगों ने बोला है कि मुझे बाल बांधने नहीं चाहिए, विच इज़ राइट. तो मैंने अपने बाल बांध लिए. सॉरी फॉर दैट. प्लीज़, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा एक्सक्यूज मी. आई नो मैं नॉर्मली बाल खोल कर नहीं करती हूँ बट अभी मुझे इस वीडियो में थोड़ा अच्छा लगना था तो मैंने थोड़े बाल खोल लिए अपने. सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी. थैंक यू सो मच. आई नो ये ऑलमोस्ट बन गया है. यू कैन सी कि कितना क्रीमी है. This looks really good. See. It's so creamy. Guys, you have to try this recipe for my sake, please. और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्चर ज़रूर भेजना. आई विल शेयर इट विद एवरीबडी एंड प्लीज़ सेंड मी अ पिक्चर और सेंड अ कमेंट और एनीथिंग. और अगर आपके पास कोई और मशरूम रेसिपी है, बिकॉज आई लव मशरूम और मेरे चैनल पे काफ़ी सारे मशरूम के रेसिपीज़ है. तो अगर आपके पास कोई और रेसिपी है तो प्लीज़ लीव अ कमेंट बिलो और मुझे बताओ कि रेसिपी कौन सी मुझे नेक्स्ट ट्राई करनी चाहिए. और yes, please do try this recipe and send me the pictures.
If you have any other question to ask me, please go ahead. So Juhi, Meeta is asking if we can add broccoli. Yes, please. You can go ahead and add broccoli. I have done that before. मैंने एक ब्रोकली बनाई थी सेम रेसिपी से, बस इसके मशरूम की जगह मैंने ब्रोकली डाली थी, और ब्रोकली के ऊपर आप थोड़ा चीज़ डाल के या तो सीधा भी खा सकते हैं या उसको ओवन में थोड़ी देर रख के बेक ब्रोकली बना सकते हैं. वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है. माई डैड लव्ड इट, जबकि उनको ब्रोकली बिल्कुल पसंद नहीं है, बट उन्हें फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो डिश. तो यस, प्लीज़ गो अहेड एंड ऐड ब्रोकली. So you can see my Instagram, That Tiny Chef. Please go and follow me. I have a lot of nice recipes to share with you guys, and काफ़ी quick recipes है जो आपको लॉकडाउन में बहुत अच्छी लगेंगी, तो प्लीज़ आप जाके फॉलो कीजिए. I think this is almost done. आई थिंक दिस इज़ डन. अब हम टोस्ट कर सकते हैं. तो मैं ये बन ये हटाकर टोस्ट कर लेती हूँ ब्रेड. दिस इज़ डन. एज यू कैन सी इट्स डन. काफ़ी थिक ग्रेवी बनी. आई थिंक 1 कप इज़ इनफ. काफ़ी ग्रेवी है इसके अंदर. It's smelling also heavenly. अब हम ब्रेड टोस्ट कर लिए. इसके इतने राइस बन रहे हैं हमारे. राइस चेक कर लेते एक बार. देर ऑलमोस्ट रेडी. और थोड़ी देर और. मैं वेट कर रही हूँ तवा गर्म होने का. अगर आपके पास कोई Juhi, how do you know that mushrooms are ready? ये बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं. आप देख रहे हो बिल्कुल छोटे छोटे हो गए, तो इससे पता लग जाता है. अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप थोड़ा इसको कट करके देख सकते हैं इसके साथ, तो पता लग जाएगा कि काफ़ी सॉफ्ट होके कट हो जाता है. बेसिकली मैं साइज़ से इसको पता कर लेती हूँ कि बहुत ही छोटा साइज़ हो चुका है इसका, तो ये कुक हो गया है. सी वेरी क्रीमी. बटर लगा के टोस्ट करती हूँ. ये मैंने गार्लिक बटर यूज़ किया है. आई थिंक गार्लिक बटर इज़ द अमूल बेस्ट प्रोडक्ट. बेस्ट. लाइक आई हैव स्टॉप यूजिंग नॉर्मल बटर आफ्टर आई स्टार्टेड यूजिंग द गार्लिक बटर. इट्स टू गुड. तो मैं मल्टीग्रेन ब्रेड मंगाती हूँ हमेशा, उसके साथ गार्लिक बटर लगा के खाती हूँ. मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और पास्ता के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है.
सो मेक श्योर कि थोड़ा ब्रेड क्रिस्पी हो, बिकॉज क्रिस्पी ब्रेड ज़्यादा अच्छा लगता है पास्ता के साथ. आप इसके अंदर मशरूम के अंदर बॉईल करके पास्ता डाल देंगे तो वाइट सॉस पास्ता बन जाएगा. और इंस्टाग्राम पे जो मेरा हैंडल है दैट इज दैट टाइनी शेफ, क्योंकि टाइनी शेफ अवेलेबल नहीं था तो प्लीज़ दैट टाइनी शेफ जाके फॉलो कीजिए. मेरे पास बहुत सारी रेसिपीज़ है आप लोग के लिए. मेक श्योर दैट यू फॉलो मी देयर एंड डू लीव अ फीडबैक एंड डू शेयर द पिक्चर ऑफ द डिश व्हेन यू ट्राई इट. Which cream did you use? मैंने फ्रेश क्रीम यूज़ किया है, अमूल का ही. अमूल यू कैन सी अमूल फ्रेश क्रीम. आप ये यूज़ कर सकते हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा क्रीमी नहीं चाहिए और ज़्यादा फैट ऐड नहीं करना है आपको, सो यू कैन स्किप द क्रीम ऑल्सो. मैं इतने राइस चेक कर लेती हूँ. राइस ऑलमोस्ट बन गया है, थोड़ा सा पानी रह गया इसमें. तो थोड़ा पानी सूख जाने दीजिए. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द वाटर टू इवेपोरेट एंड दे आर ऑलमोस्ट रेडी. Juhi, have you made garlic butter at home or is it available in the market? नो, अमूल्स गार्लिक बटर इट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट. प्लीज़ अगर आप गार्लिक बटर खाएंगे उनका तो आप दूसरा बटर कभी यूज़ ही नहीं करेंगे, तो प्लीज़ गो एंड बाय इट. अब मैं एक्चुअली अपने सारे जो ब्रेड है वो उस गार्लिक ब्रेड में ही टोस्ट करती हूँ. तो यस, इट्स अवेलेबल इन द मार्केट. अगर हाँ आप जाइए आपको मिल जाएगा. And did you add anything in the rice except the herbs? नो हर्ब्स एंड सॉल्ट, दैट्स इट. इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो नहीं डाला है अभी तक, तो हम वो भी डाल देते हैं. आप बनाते हुए भी डाल सकते हैं, एंड में भी डाल सकते हैं, बिकॉज ये हर्ब्स को इतना if you like it spicy you can add a lot of chili flakes. yes, मेरा ब्रेड चल गया है. मेरा ब्रेड बन गया है और थोड़ा सा जल भी गया है, जो मेरे साथ हमेशा होता है. सो प्लीज़ एक्सक्यूज, आई एम श्योर यू नो हाउ टू टोस्ट ब्रेड. दिस इज़ रेडी, दिस इज़ रेडी. अब हम इसको ऑफ कर रहे हैं. चावल भी बस बनने वाले हैं. ठीक है, अब सो आई एम टेकिंग दिस प्लेट. उसमें मैं टोस्टेड ब्रेड डाल रही हूँ. Look at this, it's looking really nice. अब मैं इसमें राइस रखूँगी. हमारे राइस भी बन गए और Juhi, can we use chili powder in the recipe? चिली पाउडर का टेस्ट थोड़ा अलग होता है, तो इटालियन के साथ वो ज़्यादा जाता नहीं है. यू कैन स्किप चिली फ्लेक्स इफ़ यू डोंट हैव, या थोड़ा सा डाल सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो इंडियन डिशेस के साथ ही जाता है. थोड़ा इटालियन के साथ जो हमारा नॉर्मल चिली पाउडर है वो ज़्यादा जाता नहीं है. सो ट्राई एंड अवॉइड इट.
So I am a food stylist as well. अभी तो मेरा स्टाइल थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है because I'm at my parents' place and I don't have my crockery or anything. But if you check out my profile, you will see I do food styling and food photography as well. ये थोड़ा खराब हो गया है, but anyway it doesn't matter. The taste should matter. So yes, our dish is ready, and I'm sure I really hope you like this. Sorry for any mistake that I must have done today. This is my first live session, and I was a little nervous, but I'm sure अगर आप इसको try करेंगे तो आपको taste बहुत अच्छा लगेगा. तो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए. मुझे ज़रूर फीडबैक भेजना, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मुझे फ़ोटोज़ भेजना अगर आपने ट्राई करी डिश. इट वुड मेक मी रियली रियली हैप्पी. सो या थैंक यू सो मच. आई होप यू लाइक दिस. इफ एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चंस I can answer quickly. We have like 2 minutes. I think yeah, no questions. So thank you so much. So someone is asking, like, they're asking about how many products, Amul products you've used in your recipe. I have used Amul butter, I have used Amul cheese, I have used Amul cream, and I have used Amul milk. Actually, काफी सारे products use किए. मेरे सारी Amul के हैं, बस mushroom को छोड़ के. So yeah. So Juhi, a lot of people are appreciating you. Would you like to say something to them? Thank you so much. It means a lot to me. This is my first live session, and I think I'm going to do a lot of live sessions on my Instagram account next week. So please join me there, follow me there. We can cook a lot more recipes. मैं उस live session से पहले आपको सारे ingredients बता दूँगी जिससे हम साथ में cook कर सके उसको. तो please follow me there and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye. Hope you have a nice weekend.